Okay, so our today's topic is phylum Coelenterata or Cnidaria. It has got these two names. Now, first of all, the phylum, the organisms of this phylum, they are having a single pore, just one pore, just like a previous phylum. और जो पुराना phylum था, phylum Porifera, उन organisms के पास भी एक ही opening था. If you remember, उनके पास भी एक ही opening था, and that opening was called osculum. Okay. So these organisms also are having one opening, and this opening is known as mouth. In case of these animals, this is known as mouth area. And another thing, that these organisms have a cavity, gastrovascular cavity. This is the cavity, and this cavity has got a name, and that name is coelenteron. The name of that cavity is coelenteron. That is why they have got the name phylum Coelenterates. Now you know it, how it has got this name. ठीक है, इसको phylum Coelenterates क्यों कहते हैं? क्योंकि इन organisms के पास जो cavity है, I'm talking about this cavity, this space, gastrovascular cavity. This space, this cavity has got a name, and that name is coelenteron. So they have got the name Coelenterates. Okay. Now another thing, that these organisms, so these are, now let's start with the general characteristics, the terms which are which we are already familiar with. First of all, these organisms are multicellular. They are made up of many cells, and they are showing tissue level of organization. Okay, tissue level of organization means multicellular organisms are there, so cells are present in many, and they are present in multiple numbers. So cells are coordinating with each other. In phylum Porifera, जो हमारा पिछला phylum था, वहां पे क्या था? Cellular level of organization था. So cells एक दूसरे से communicate नहीं करते थे. They were not interacting with each other. Every cell was performing all the necessary life processes function, respiration, excretion, etc. यहाँ पर क्या है? Multicellular है और cells एक दूसरे के साथ communicate कर रहे हैं. तो it is showing tissue level of organization. वो cells जो similar shape, similar structure के हैं, और वो cells जो एक ही function कर रहे हैं, वो combine होके क्या बना लेंगे? Tissues बना लेंगे. और tissues जो हैं, they will show division of labor. समझ आई मेरी बात? टिश्यूज जो हैं वो अब डिवीजन ऑफ लेबर शो करेंगे. मतलब एक टिश्यू कोई काम करेगा, दूसरा टिश्यू कोई काम करेगा, तीसरा टिश्यू कोई और काम करेगा. ठीक है, काम करने का मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एटसेट्रा. ठीक है, तो these organisms are showing tissue level of organization with division of labor. Another thing, these organisms are diploblastic. That means their embryo or the body of the organism is derived from two germlates. The body is derived from two germlates. Okay. Another characteristic of this phylum is that they are acoelomates. That means they don't have any body cavity. That means that the cavity is not surrounded by mesodermal cells on all the sides. ठीक है, mesodermal cells से surrounded नहीं है cavity. So there is actually there is no cavity as such. ठीक है, so they are acoelomates. Another thing, their body symmetry is radial. They are showing radially symmetrical body. Okay, that means you can cut the body into many planes, but that plane has to pass through the center. उस प्लेन को सेंटर से पास होना पड़ेगा. रेडियल वर्ड आया है वर्ड रेडियस से. रेडियस इज समथिंग इन दी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज रीचिंग द पेरिफेरी. तो उसको रेडियली कट करना है आपको. ठीक है. अनदर थिंग, that these organisms are having mouth, right? Mouth to hai hi. Another thing, that this mouth is surrounded by tentacles. Can you see these tentacles? These are the tentacles. These are the tentacles. ठीक है. So what is the function of these tentacles? First of all, these tentacles are helping in taking in food. खाना खाने में मदद कर रहे हैं. खाने को engulf करने में मदद कर रहे हैं. Basically
उनको इंटेक करने में हेल्प कर रहे हैं खाने को, ठीक है, खाने को इंटेक करने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, आई टेक योर डाउट्स, जस्ट गिव मी 2 minutes। दूसरी बात जो ये है कि these tentacles are having specialized stinging cells, can you see? The tentacles are having specialized stinging cells, stinging cells हैं, and the name of the stinging cell is nidoblast। इन stinging cells को हम कहते हैं nidoblast। And now you can relate why they have got this another name, nidaria, from these nidoblasts. They have got two names, phylum Coelenterata and Cnidaria, right? So Coelenterata, they have got the name because of the gastrovascular cavity. Their cavity is coelenterum. Why they are called Cnidarians? Cnidaria क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स हैं जिनका नाम है नीडोब्लास्ट। यहीं से इनको इनका दूसरा नाम मिला है, निडेरिया, ठीक है। सो ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, one function is they will these tentacles they will help in taking in food, खाने को इंगल्फ करने में मदद करेंगे। दूसरी बात, ये जो stinging cells हैं, they will help in defense mechanism, they will protect them from their predators, okay, they will protect them from their, okay। So another characteristic of this phylum is that these organisms they are found in marine water as well as fresh water, मतलब कि they are found in rivers, lakes, ponds, etc. और they are also found in sea। fresh water का मतलब है rivers और lakes, और marine water का मतलब है seas and ocean। तो ये दोनों जगह मिलते हैं। only exception here is hydra। hydra एक exception है यहाँ पे, क्योंकि hydra जो है it is found in fresh water also, okay, it is found in fresh water, hydra is found in fresh water, okay। Another thing about this phylum is that some of the organisms will have solitary lifespan। solitary lifespan का मतलब होता है कि अकेले रहते हैं, they don't live in colonies, जैसे कि hydra। solitary lifespan का मतलब हुआ कि they don't live in colonies, जैसे कि hydra। hydra जो है वो अकेला रहता है, see, it is alone, that is this is known as solitary lifespan। but some of the organisms are found in colonies। तो जैसे कि सी एनेमोन, कोरल्स, ये सब क्या है, दे लिव इन कॉलोनीज। तो ये कॉलोनीज में रहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक, okay, another characteristic is that their respiratory and excretory system are not present। so no respiratory and excretory system are there। so how will they respire or excrete out? they will respire and excrete out through the body surface। जो इनका body surface है उसके through by the process of diffusion, respiration और excretion का process होगा, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे इनके ऑर्गेनिजम्स हैं, इस फाइलम के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? बोनी स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ बोनी स्ट्रक्चर ऑन द आउटसाइड, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अंदर प्रेजेंट होती हैं, राइट। हमारे बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन है वो। तो ऐसे ही अगर स्केलेटल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बाहर की तरफ, तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में, नॉट ऑल, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि उनको क्या बना देता है? हार्ड बना देता है। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं? कोरल्स। आप सब कोरल्स के बारे में जानते हैं, यू ऑल नो अबाउट द ग्रेट कोरल रीफ। जो कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे बिलोंग टू फाइलम सीलेंटेरेट्स, ठीक है। वो सीलेंटेरेट्स होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन कैल्शियम के बने होते हैं, तो उनका आउटर सरफेस क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है हाइड्रा, सी एनेमोन, ऑरिलिया। ऑरिलिया क्या होता है? जेलीफिश। दिस इज ऑरिलिया, दिस इज सी एनेमोन, दिस इज सी एनेमोन एंड दिस इज ऑरिलिया। अनदर थिंग, इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो फ्री स्विमिंग है, दैट मीन्स जो कि स्विम कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर मोटाइल। ये टर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दे आर मोटाइल, मतलब कि दे कैन स्विम। और
कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इस फाइलम के वो क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब क्या होता है, दे आर अटैच्ड टू सम सॉलिड सरफेस और सम रॉक, राइट। जैसे कि सी एनेमोन, यू कैन सी दिस सी एनेमोन, this sea anemone is attached to this rock, so this is sessile. Now have a look at this Aurelia jellyfish, this is free swimming, okay, it is not attached to anything, it can swim. So we have both the types of organisms under this phylum, okay. So our next phylum is phylum Platyhelminthes, okay, थोड़ा सा tough name है Platyhelminthes. The word platy means flat, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन का मतलब होता है वर्म। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम कह सकते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है, इनको हम कॉमनली कह सकते हैं फ्लैट वर्म्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर नाउ, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है। अनदर थिंग which we are seeing for the first time, these organisms are triploblastic. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग। अभी तक जो दोनों फाइलम हमने पढ़े थे, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंटिवेटा, दोनों ही फाइलम क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिजम्स अब क्या हो गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं। दैट मींस देयर बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 germ layers. Now these organisms are again acoelomates. Okay, acoelomates means they are not having any body cavity. Now new thing here is they are showing organ level of organization. ठीक है, अभी तक जो फाइलम पोरीफेरा था वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, फाइलम निडेरिया जो था वो था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी थर्ड फाइलम है, नाउ वी आर सीइंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट। दैट मींस द टिश्यूज आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। सो दे आर, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गन फॉर्मेशन। यू विल नॉट सी ऑल द ऑर्गन्स व्हिच वी आर स्टडीइंग सिंस चाइल्डहुड, सारी ऑर्गन्स तो नहीं होंगी, it's just the beginning of organ formation, okay. So it is showing organ level of organization. Another thing, their body is unsegmented. So unsegmented का मतलब क्या हुआ, that the body of the organism is unsegmented. So suppose this is the body of the organism and it is not, it is plain, it is not having any segments. There is this body which is having segments, this is a body with segments, okay. So these are the organisms which are having no segment, so they are unsegmented. So they have soft and unsegmented body and it is flattened. Flattened का मतलब क्या है, that means they are dorsoventrally flattened. I hope now you can relate to this term, dorsoventrally flattened. Dorsal means the belly side, ventral means the vertebral column side, ठीक है। अब जो बेली साइड है, जो वर्टिब्रल कॉलम साइड है, उन दोनों को अंदर की तरफ अगर हम पुश कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा। तो वही शेप है इन ऑर्गेनिजम्स का, पूरी तरीके से फ्लैट। जो बेली साइड है और जो वर्टिब्रल कॉलम साइड है वो पूरी तरह से फ्लैटेंड है अंदर की तरफ, राइट। सो दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और इनकी अगर शेप की बात करें हम, तो इनकी शेप जो है, इट कैन बी लीफ लाइक दिस इज लीफ लाइक, or this can be ribbon like also, ribbon like also. So only exception in this case is tapeworm. Tapeworm में थोड़े से segments है, ठीक है, सिर्फ एक दो ऑर्गेनिज्म है जिनमें segments हैं, otherwise किसी में भी segments नहीं है. It is unsegmented, it is again unsegmented. Okay, now if we talk about their body cavity, now for the first time, they are again acoelomates. Okay, they are not having any body cavity, so body cavity is absent, that means they are acoelomates. Now their respiratory, circulatory and skeleton system, they are again absent, so they are respiring through their body surface. अपने body surface से by the process of diffusion they are respiring, ठीक है। और इनकी opening जो है वो एक ही है. Just in case of planaria, we have two openings, mouth and anus. Otherwise, you can see
we have these openings only. And another peculiar thing about this phylum is that they are showing some adhesive structures. Adhesive structures, what is the use of that adhesive structure? Adhesive का मतलब क्या होता है? ग्लू, चिपकने वाला स्ट्रक्चर. अभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पहली बात तो ये दो तरीके से मिलते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या ये पैरासिटिक होंगे. फ्री लिविंग का मतलब क्या है कि ये किसी की बॉडी या होस्ट बॉडी में नहीं रहते हैं. फ्री लिविंग है, अपना फ्री रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना घर खुद बनाते हैं. ठीक है, दो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर रिक्वायरमेंट. ठीक है. कुछ ऑर्गेनिज्म इसके पैरासिटिक है. पैरासिटिक का मतलब क्या है? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं. और ये ऑर्गेनिज्म उसी होस्ट बॉडी में से खाना निकालते हैं और उसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनका घर भी वही बन जाता है. ठीक है. तो एग्जांपल आपको देती हूँ प्लिनेरिया का. प्लिनेरिया जो है वो एक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म. तो सी, इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक कॉमन नेम है जो है फ्लैट वर्म. आप समझ पा रहे हैं? फ्लैट वर्म इन सारे ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम है, तभी इनको नाम मिला है प्लेटीहेल्मिंथ्स. तो जब मैं फ्लैट वर्म बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ. ठीक है. अब इन्हीं ये जो जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं उनमें एक फ्लैट वर्म है प्लिनेरिया. ठीक है. प्लिनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है, मतलब कि वो पैरासिटिक नहीं है, वो किसी बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहता है, वो फ्री लिविंग है, पानी में रहता है. ठीक है. दूसरी बात, लिवर फ्लूक और टेप वर्म. लिवर फ्लूक तो लिवर के अंदर रहता है और ह्यूमन बॉडी में रहता है, एनिमल्स की बॉडी में रहता है और लिवर के अंदर रहता है. तो लिवर के अंदर ये रिसाइड करता है और ये लिवर से अपने आप को अटैच कर लेता है थ्रू दिस एसिटाबुलम. जो मैं बात कर रही थी एडेसिव स्ट्रक्चर की, तो ये एडेसिव स्ट्रक्चर है, चिपकाने वाला स्ट्रक्चर है. तो इसके थ्रू ये अपने आप को लिवर से अटैच कर लेता है. ठीक है. सो दिस इज दैट एडेसिव स्ट्रक्चर. तो ये लिवर में रहता है. अब टेप वर्म. टेप वर्म जो है इट इज एज थिन एज पेपर. पता है टेप वर्म रियलिटी में इट्स एज थिन एज पेपर की जितना थिन होता है. कैन यू इमेजिन? पेपर के जितना थिन होता है. और ये कहाँ रिसाइड करता है? ऑर्गेनिजम्स की इंटेस्टाइन में. दैट इज इट्स फेवरेट प्लेस. इंटेस्टाइन के अंदर रिसाइड करता है. ठीक है. और ये वहां पर भी अपने आप को एक एडेसिव स्ट्रक्चर से अपने आप को चिपका लेता है. एंड दैट एडेसिव स्ट्रक्चर इज नोन एज सकर. दिस इज द एडेसिव स्ट्रक्चर. तो इससे ये अपने आप को उससे चिपका लेता है. Another thing about these organism is that कि ये जो organisms हैं ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म नाम मिला है. ठीक है. अब रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं? थ्रू देयर बॉडी सर्फेस. Another thing, these organisms they have specialized cells for excretion. एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स. आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए. जो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं फ्लेम सेल्स, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब ये जो फ्लैट वर्म्स हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. सो बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी सेम ऑर्गेनिज्म. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हर्माफ्रोडाइट्स. इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है. इंटरनली का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. ठीक है. अनदर थिंग, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो तरीके से डेवलपमेंट शो करते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट होती है दैट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. अब ये दो नई चीजें आ गई, ये आपको मैंने पहले नहीं बताई है. डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या? डायरेक्ट इन डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बना है तो वो डायरेक्टली बिल्कुल वो ऑर्गेनिज्म तैयार ऑर्गेनिज्म निकला. बिल्कुल समझ रहे हैं. तो प्लिनेरिया है, उसने जो नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस किया है वो एक प्लिनेरिया ही है. उसमें कोई स्टेजेस नहीं है कि लार्वल स्टेजेस है या प्यूपा स्टेजेस है. पूरा ऑर्गेनिज्म एक बार में ही तैयार हो गया.
सो दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले एग्स आएंगे, फिर उसमें से लार्वल स्टेज होगी, फिर प्यूपा स्टेज होगी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस और फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों तरीके से डेवलपमेंट शो करते हैं। जैसे कि प्लनेरिया जो होता है, प्लनेरिया में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, ठीक है, लार्वल स्टेज नहीं होती है प्लनेरिया की, डायरेक्टली बॉर्न होता है। पर जो टेप वर्म है जैसे, उसमें लार्वल स्टेजेस होती है। तो जो प्लनेरिया है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है। जो टेप वर्म है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है। एक और चीज है, कुछ सेकंड्स ही बाकी हैं, जस्ट वन थिंग अबाउट दिस फाइलम एंड इमीडिएटली आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास। सी, फॉर द फर्स्ट टाइम इस फाइलम में आपको हेड फॉर्मेशन दिखेगा। हेड फॉर्मेशन का मतलब है हेड इज देयर, हेड, जैसे कि यहाँ पे आप सी यू कैन सी इन प्लनेरिया, यू कैन सी दिस हेड रीजन। So head formation began in this phylum and this head formation is known as syphilization. This head formation is known as syphilization और ये पहली बार शो हुआ है या इस फाइलम से बिगेन हुआ है। पर ये जो हेड है इट इज अ काइंड ऑफ रूडिमेंट्री हेड, कंप्लीट हेड नहीं है, इट डजंट हैव ब्रेन, कोई ब्रेन नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ बिगिनिंग है हेड फॉर्मेशन का, इसको सिफिलाइजेशन कहते हैं। So this doesn't have brain. Okay, so